नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। सबसे पहले बात गेहूं पे लगे बैन की। घरेलू बाजार में कीमतों में अचानक आई तेजी के चलते गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार के फैसले पर फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने कहा है कि ग्लोबल फैक्टर की वजह से महंगाई पर असर पड़ रहा था और गेहूं की कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। इसे देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया जाए। ग्लोबल स्तर पर गेहूं के अनरेगुलेटेड ट्रेड और उसकी वजह से देश में बढ़ती कीमतें, ये दोनों प्रमुख वजह थी। ऐसी कुछ और बातें भी उन्होंने हमारे संवाददाता समीर दीक्षित के साथ इंटरव्यू में कही हैं। आइए सुनवा देते हैं सुधांशु पांडे क्या कह रहे हैं। Food Secretary Sudhanshu Pandey, so thanks a lot for talking. My first question is that what led the government to take such a bold decision to put up a ban on exports of wheat? This is not a ban. This we have been explaining time and again. This is not a ban. This is regulation of export. Okay. Right. All the valid contracts that are backed by the LCs, that export will be allowed. Okay. And all those countries who face food deficit or are vulnerable to food security requirement, if their request is made by the government, then also government will take a call to facilitate export. So it's not a ban in that sense. Okay. तो अभी ये फैसला लेने की जरूरत क्यों आनी पड़ी? आपको क्या वजह लगती है? प्राइसेस का अगर आप राइस देखें तो wheat prices and आटा prices they have gone up by 19% and 15%. In some of the regions of zonal study is done, they have gone even more than 32-35% increase has happened. Exactly. So we hope that the wheat stocks which are available within the country, they would be made available in the market, and speculative export pricing will not happen. जिस अनरेगुलेटेड ट्रेड की बात कर रहे थे, जब भी अपने अपने जवाब में कहा, क्या अंदेशा आपको लग रहा था के चलते अनरेगुलेटेड आप जो ट्रेड की बात करें वो क्या था? Those countries who were producing wheat, they themselves have put ban, right? Those countries who wanted to meet their own requirement, they were stocking. So therefore you have to take care of all the global scenario, and we showed you the presentation in which the global scenario, because of the climate change and the early heat, globally wheat production is affected. You read the global report. There is a conference I am told in New York on this, on the wheat supplies issue. In terms of stocks, how secured we are? If you want to We be have some sufficient stocks. We have buffer stock says that 75 almost we have 660 lakh metric ton of stocks as of now of wheat and rice, which is more than buffer stocks. and the expected export of 10 million tons, that the expected exports, you think that it will be revised? No. So, as Commerce Secretary explained, these are the decisions which get revised based on the overall assessment of the situation. Lastly, you think so that the wheat or the floor prices will soften in coming months? Certainly, we very clearly see, you will see within a week's time, the prices will come down. Okay. Talking to us, फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे का मानना है कि ये एक बड़ा कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि ग्लोबली अनरेगुलेटेड ट्रेड हो रहा था, साथ ही भारत में भी आटे और गेहूं की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी, जिस पर काबू पाने के लिए ये कदम उठाना वक्त की मांग हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे फूड सेक्रेटरी यही बताते हुए कि उन्होंने इससे संदर्भ में फैसला लिया है, सरकार ने इस संदर्भ में फैसला लिया है कि कहीं पे फूड सिक्योरिटी से हम किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और तो खुद ये बात बता रहे थे कि जहाँ जहाँ पे गेहूं ज़्यादा होता है, जो एक्सपोर्ट्स करती हैं कंट्रीज़, बाकायदा उन्होंने भी बैन किया है और अपनी फूड सिक्योरिटीज़ का मामला उन्होंने भी अच्छे से देखा है, अच्छे से बात रखी है। खैर, इस बीच कई मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब दो खास मेहमान पे जुड़ रहे हैं। देवेंद्र वोरा है हमारे साथ और साथ ही JUB एग्रो फूड्स के निखिल सिंघी भी हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पहले तो समय देने के लिए। और JUB एग्रो के निखिल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले देवेंद्र जी, आप अगर सुन पा रहे हैं मेरे को तो एक बार आप अपनी बात रखिए। आप आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है आवाज़ आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। देवेंद्र जी, मैं आपसे यही पता करना चाहता हूँ, ये सरकार ने वैसे तो वो वर्ड बैन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने तो रेगुलेट किया है।
हमने ग्लोबल हिसाब से देखा तो उसको हम बैन वर्ड ना करते हुए रेगुलेशन उसको मानते हैं। कितना फ़र्क पड़ेगा सर इससे दामों में, और कितना फ़र्क पड़ेगा इससे फूड सिक्योरिटी पे? एक्सपोर्ट इतना बड़ा तो इशू नहीं था। ऐसा है कि बहुत दिनों से सरकार के ऊपर दबाव था, और जो गर्मी के कारण सरकार को जो प्रोक्योरमेंट कम आया था यील्ड की वजह से, और वन साइडेड सारे स्टॉकिस्ट गेहूं के ऊपर पूरा कंसंट्रेट करके ले रहे थे, और चारों बाजू गेहूं का अच्छा स्टॉक हो रहा था। और उसके कारण थोड़ा सरकार के ऊपर थोड़ा दबाव था, और ये मॉनिटरिंग किया है तो वो वेलकम करने लायक है कि आने वाले 3-4-5 साल हमारे गेहूं का एक्सपोर्ट होगा, ऐसा हम समझ रहे हैं। मॉनिटरिंग किया, लेकिन एक बात में सरकार को भी हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार का जो इंटरनल कम्युनिकेशन है अलग अलग मिनिस्ट्री का, तो जैसे पीडीएस है, एग्रीकल्चर है, कॉमर्स है, और फॉरेन या अफेयरनल विदेश मंत्रालय, उनके साथ में थोड़ा जो ट्यूनिंग होना चाहिए। तो ये पॉलिसी बहुत समय के पहले डिसाइड होनी चाहिए थी। ये समय क्या है, थोड़ा सा बहुत सारे ट्रेडर को थोड़ी तकलीफ में आ सकते हैं, वो मतलब ये जिसने स्टॉक किया है उसको भी, और बाकी किसानों का जो बात है वो तो खैर सरकार 2015 के भाव में माल ले ही लेगी, और जो किसानों को जो फायदा होने वाला था, मैं ऐसा समझता हूँ कि अगले हफ्ते से मंडी में भाव थोड़े 100-150 रुपया गिरेंगे, और किसानों को जो फायदा 17-18 साल के बाद इंटरनेशनल मार्केट का मिलना चाहिए था, उसमें थोड़ी कमी आएगी, ऐसा मैं समझता हूँ। देवेंद्र जी, क्या सरकार ये भी कर सकती है कि जो एक्सपोर्ट के पैसे थोड़े ज़्यादा मिलते क्योंकि दाम बढ़े थे, तो सरकार थोड़ा खरीद का रेट ऊपर कर सकती है ताकि किसानों को आखिरकार नुकसान ना हो? ऐसा आप कितनी गुंजाइश देखते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि अभी ये टाइम में कोई, फिर भी सरकार है कर सकती है कि कोई बोनस सरकार, मतलब जो 15-20% यील्ड कम आया है उतना कोई बेनिफिट अगर फार्मर को 100-200 रुपया बोनस दे तो अच्छी बात होगी। और बाकी मैं ऐसा समझता हूँ कि सरकार शायद खुद एक्सपोर्ट करना चाहती है। जैसे कोई आज जो सरकार का जो नोटिफिकेशन और जो बात हो रही है कि भाई कोई भी विदेश का जो कोई भी दूसरा कोई कंट्री है वो भारत सरकार को लिखेगी कि हमको गेहूं चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट है, तो शायद सरकार एमएमटीसी या एसटीसी या कोई भी सेमी गवर्नमेंट यूनिट के द्वारा उसको एक्सपोर्ट कर सकती है, या तो कोई बड़ा कोई एक्सपोर्ट हाउस है उसको वो ऑर्डर दिला सकती है। बट कहीं ना कहीं जो एकदम जो इंटरनेशनल मार्केट जो फार्मर्स को 35 देशों में मिला था उसमें थोड़ा सा फर्क होगा, और प्राइवेट प्लेयरों ने इतनी अच्छी मेहनत करके पूरी भारतीय गेहूं की विदेश में बाजार डिमांड खड़ी करी थी, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा तकलीफ होगा, और बहुत सारे ट्रेडरों को इसमें थोड़ा नुकसान आ सकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है देवेंद्र जी, एक चीज़ आपसे और समझना चाहते हैं, अब जो गेहूं की कटाई हुई है, मंडियों में गेहूं आई होगी, तो कितनी खरीदारी हो चुकी है, यानी कि प्रोक्योरमेंट कितनी हो चुकी होगी सरकार की तरफ से, और कितनी अभी होना बाकी है? ये सरकार और गैर सरकार, कुछ इसका आंकड़ा है आपके पास सर? मेरे हिसाब से जो मध्य प्रदेश के फिगर्स बहुत सारे हैं, राजस्थान के, गुजरात तो लगभग 90% बाहर निकल चुका, किसानों के हाथ से गेहूं जा चुका, और मध्य प्रदेश में 65 से 70% माल जा चुका। एवरी डे हर रोज 10 लाख बोरा मंडी में माल आता था, और वो माल पोर्ट में चला जाता था, मुंबई, कंडला, मुंद्रा वगैरह। मैं ऐसा समझता हूँ कि लगभग हिंदुस्तान में 75 से 80% जो गेहूं है वो किसान के हाथ से या तो ट्रेडरों को चला गया, या एक्सपोर्टरों को चला गया, या फ्लोर मिलरों को चला गया। तो अभी जो नुकसान सहन करने की कोई बात आती है अगर डिसीजन से, तो मेरे ख्याल से ट्रेडरों को होगी, और जो किसानों का माल अभी नहीं बिका है उसको भी थोड़ी तकलीफ आ सकती है, और शायद सरकार उसको हेल्प करके 100-200 रुपया बोनस देके वो माल ले सकती है, ऐसा मैं समझता हूँ। दूसरा, जो गवर्नमेंट ने एक सिस्टम अच्छा सेट किया था कि भाई जो प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना में जो अनाज देना था उसमें गेहूं की बजाय चावल देने की जो बात थी वो वेलकम करने लायक बात थी। उससे सरकार को 55 से 60 लाख टन गेहूं बच जाता था, मतलब सेविंग हो जाता था। और मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा कोई भी ज्यादा पैनिक करने लायक परिस्थिति गेहूं में थी, बट किधर न किधर सरकार दबाव में आके ये डिसीजन लिया है, और सरकार का डिसीजन है वो हम लोग वेलकम करते हैं।
आप कह रहे हैं कि सरकार का डिसीजन है, ठीक है, जैसे भी लिया गया आप उसका वेलकम करते हैं। एक अच्छी जानकारी आपने ये दी है कि किसानों के हाथ से गेहूं निकलकर व्यापारी, आड़तियों या जिनके पास पहुंचनी है वहां तक पहुंच चुके करीब 80%, तो कुल मिला के 20% ही गेहूं थी जो मार्केट में खुली थी, जो कि इसके सौदे होने बाकी थे। अब सर मेरे को एक बात और बताइए, क्योंकि आप व्यापारी भी हैं और किसानों की इस फसल पर ध्यान भी रखते होंगे। जब हम फूड सेक्रेटरी को सुन रहे थे ना, वो ये कह रहे थे कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा है कि जिससे गर्मी एकाएक थोड़ी ज़्यादा आ रही है, पहले भी आ रही है, और इसका असर न केवल भारत पर बल्कि विश्व के सभी फूड्स पर, खासकर गेहूं पर असर पड़ ही रहा है। हमेशा से प्रोडक्शन अब शायद कम होगा अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो। इससे कितने चांसेस हैं कि आगे चल के प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा, या फिर रकबा कम हो रहा है? बुआई कम हुई थी इस बार, ऐसा तो नहीं है कुछ? हमारे हिसाब से बुआई तो ठीक हुई थी, लेकिन जो होली के बाद में 4 दिन में 17 डिग्री का सीधा 40-42 डिग्री जो गर्मी हो गया, उससे गेहूं श्रिंक हो गया, मतलब जो सिकुड़ गया गेहूं, उससे जो इल्ड है वो थोड़ा फर्क पड़ गया। नहीं तो गेहूं में कोई हमको कोई टेंशन वाला या तकलीफ वाला काम नहीं था। और उसी हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री भी पूरी दुनिया में जाके कहते थे कि जिसको भी अनाज की गरज पड़ेगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। वो ऐसा प्रधानमंत्री कोई बिना सोचे समझे तो बात नहीं करते, और हम और आप सब समझते हैं। कोई, मुझे नहीं लगता है कि ये गेहूं में कोई अपनी यहाँ शॉर्टेज होगी। अगले साल के लिए गवर्नमेंट को, मैं ऐसा समझता हूँ, एमएसपी का भाव थोड़ा बढ़ाना होगा। और ये जो पॉलिसी है, जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है, वो परमानेंट 1 साल 2 साल 3 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या कनाडा की जो सरकार बनाती है, ऐसी 2-3 साल की पॉलिसी बनाएगी, जभी जो अच्छे प्लेयर है वो उसमें काम कर पाएंगे। और ये डिसीजन में हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो कि खाली बड़ी बड़ी कंपनियों का ही काम हो और छोटे जो एक्सपोर्टर है और छोटे ट्रेडर है वो उसको नुकसान हो। नहीं, ठीक है, ये बात भी आपकी काफ़ी ठीक है कि जब सरकार पॉलिसी बनाए तो हर किसी का ध्यान रखे। सरकार का खुद का मानना है कि सबका विकास होना चाहिए, तो ये बात आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे देवेंद्र जी और पता करना चाहता हूँ, क्या दाम अभी ऊपर ही रहेंगे? ये झटका तो ठीक है, 100-200 रुपये आप खुद कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत एडजस्ट होगा, क्योंकि मंडी में तो गेहूँ भी नहीं है, 20% ही रह गई है खाली गेहूँ के सौदे पे। क्या ये अभी भी गेहूँ के दाम अगले सीज़न तक या फिर थोड़ा और तक ये ऊपर ही रहने वाले हैं? जी हाँ, मुझे नहीं लगता है। देखो, गेहूं एक्सपोर्ट तो होगा ही होगा। अभी चाहे सरकार करेगी या बड़ी कंपनियां करेगी या जिसके पास ऑर्डर हो वो करेगा। 1 करोड़ 10 लाख टन जो एक्सपोर्ट गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्टेड फिगर था, वो तो गवर्नमेंट ने इसमें कंडीशनली रखा ही है। सो एक्सपोर्ट तो होगा ही। तो भाव इतने नीचे, मतलब एमएसपी के नीचे तो नहीं चली जाएंगे, वो सब समझ रहे हैं। और तो थोड़ा बहुत जो करेक्शन है वो अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। उसके बाद में गेहूं की जो डिमांड और खपत है वो रहने वाली है। उसकी वजह मैं इसके पहले के इंटरव्यू में भी आपको बोल चुका हूं। ज्वार, बाजरा, मक्का और जौ, और भी जो 5-7 आइटम है जो खाने हिंदुस्तान का स्टेपल फूड है, उसके भाव काफी ऊंचे हैं। तो गेहूं का खपत कोई कम हो जाएगा, रातों रात लोग गेहूं खाना बंद करेंगे, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। बस एक आखिरी सवाल आपसे और पता करनी है, आपने मुद्दा खुद ही छेड़ दिया, नहीं तो मेरा अगला सवाल यही था कि गेहूं का जो स्टेपल है जिसको हम सेरेलेक में और काउंट करते हैं, जैसे बाजरा वगैरह आप बता रहे हैं, सर मेरे को ये बताइएगा क्या इसका रकबा, इसकी प्रोडक्शन और बढ़ सकती है या फिर ये भी अपने पीक पे ही चल रही है पिछले कई साल के? हाँ, नहीं, इसमें अभी आप जो बोले वो बिल्कुल सही है। अभी खास करके नॉर्दर्न बेल्ट में जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, उत्तरांचल, हिमाचल, उधर पिछले बहुत साल से सीड्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जैसे मध्य प्रदेश ने बहुत सारे गेहूं का नया वैरायटी स्टार्ट किया, गुजरात ने बहुत स्टार्ट किया, महाराष्ट्र ने बहुत स्टार्ट किया, राजस्थान ने बहुत स्टार्ट किया। तो उधर किधर न किधर अभी तक क्या था कि एक सेटल हो गया था कि भाई अपनी यहाँ जो गेहूं उगता है तो सीधा जाके सरकार को तोलना है। तो एक निश्चिंत हो गया था। कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट खेती पे, गेहूं की खेती पे उधर नहीं हो रहा था नॉर्दर्न बेल्ट में। उधर सरकार को पूरा ध्यान देके जो नया सीड्स है, जिसका आउटन ज्यादा आवे, जिसका इल्ड ज्यादा आवे, ऐसा कुछ सरकार को उसमें जैसे बजट में 25,000 करोड़ रुपया निर्मला सीतारमन ने आवंटित किया था उसका, तो उसका यूज उसमें होने चाहिए, नया सीड्स, और जिसमें ज्यादा प्रोडक्शन आवे, ऐसा कुछ सरकार को किसानों के साथ, किसान यूनियन के साथ बैठ के वो सब करना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ।
ठीक है देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आज आपने बहुत सुलझे हुए तरीके से बताया और मैं जब आपको सुन रहा था तो ये भी अच्छा लग रहा था कि ना केवल आप एक सिर्फ एक्सपोर्टर की तरह बोल रहे हैं बल्कि एक ग्राहक की तरह भी बोल रहे हैं जो सरकार के सामने अपनी बात भी रख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से पहले हमने गेहूँ की बात की थी, ब्रेक के बाद हम खाने के तेल की बात करेंगे। मैं एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालविया। मैं दूंगा आपको ऐसे ट्रेडिंग आइडियाज़ जो कराएंगे आपको धमाकेदार मुनाफा। तो देखिए पालविया के पटाखे शेयर्स सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। 10 मिनट में आपका खाना डिलीवर हो न हो, पर यहां आपको मिलेगा हर 5 मिनट में कमाई का पक्का मौका। ईटी नाउ स्वदेश पर हर 5 मिनट कमाई का आइडिया। ईटी नाउ स्वदेश पर अब है ना सिर्फ मार्केट की बारीकियां बल्कि है कमाई का भी अच्छा मौका। हम आपको देंगे एक शानदार आइडिया हर 5 मिनट में। टेक्निकल हो या फंडामेंटल, शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म, अब सब कुछ मिलेगा आपको। तो देखिए हर ट्रेडिंग डे सुबह 8 बजे से शाम 4, सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। बढ़ो देश के साथ। मैं हूं खुश, बताऊंगा शेयर्स ऐसे जो करेंगे आपको खुश। जानिए मेरे साथ कड़क शेयर्स रोज ईटी नाउ स्वदेश पर। आपके सपनों की जिंदगी है बस एक निवेश दूर। अगर आपको घर खरीदना है तो मौजूदा समय बहुत अच्छा है, आपके पास सबसे कम ब्याज दरें हैं, फायदा उठा लेना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर की ख्वाहिश, जो आपकी जायदाद है उसको आपको कैसे समझदारी से अपने बच्चों के बीच में बांटना चाहिए। आपको आर्थिक आत्मनिर्भरता और आजादी की ओर ले जाता है हमारा खास शो ईटी मनी। बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए ईटी नाउ स्वदेश पर। पीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड पेश करते हैं ईटी नाउ स्वदेश, सेंसेक्स का सुपरस्टार। तो आज ही मैसेज कीजिए और पाइए मौका सेंसेक्स का सुपरस्टार बनने का। चलता रहा है सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से कमोडिटी कीमतों पर लगातार इसका असर देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि अप्रैल महीने में भारत का एडिबल ऑयल यानी खाने का तेल का जो आयात है यानी कि इंपोर्ट वो 13% कम होकर करीब 9.25 लाख टन पर आ गया। एससीई के मुताबिक अप्रैल में वेजिटेबल ऑयल का जो आयात है वो घटा है। नॉन एडिबल ऑयल का आयात भी कम होकर करीब 11.5 लाख टन पर आ गया है। पाम क्रूड ऑयल के आयात में भी कमी देखने को मिली है। इधर आयात घटने के साथ रिटेल कंज्यूमर्स को खाने के तेल की कीमतें गिरने से कुछ राहत मिल रही है। खाने के तेल के दामों में पिछले एक हफ्ते में करीब 5% तक की गिरावट देखने को मिली है। सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन और पामोलिन तेल की कीमतों में एक गिरावट ज़्यादा देखने को मिली। इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी हमारी सहयोगी कृतिका आपको दे रही है। कृतिका, बताएं आप। रिटेल कस्टमर्स आगे आने वाले दिनों में कुछ रिलीफ देख सकते हैं एडिबल ऑयल प्राइसेस में, जैसे कि सोयाबीन ऑयल, पामोलिन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, क्योंकि ट्रेडर्स कह रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में 10 दिनों में उन्होंने देखा है प्राइसेस अराउंड 3 to 5% थोड़े कम हुए हैं इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक होलसेल मार्केट में। और वो इसलिए क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि पिछले 2 महीनों में जब से रशिया यूक्रेन वॉर का स्टार्ट हुआ था तब से काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस शॉर्ट अप हो गए थे, अराउंड $400 to $600 पर टन। लेकिन इस प्राइस पर काफ़ी सारे बायर्स ऐसे हैं जो कॉशियस हैं कि वो नहीं खरीदना चाहते इतना ज़्यादा हाई प्राइस पर ऑयल, जिसकी वजह से थोड़ी गिरावट आई है प्राइसेस में। हालांकि CEO ऑफ रुचि सोया इंडस्ट्रीज़ मिस्टर संजीव अस्थाना ये कहते हैं कि अभी मार्केट्स थोड़ी सी लोअर हैं, लेकिन अगर कोई भी नेगेटिव इवेंट अगर होता है आगे आने वाले दिनों में तो मार्केट्स एकदम से ऊपर भी जा सकती हैं।
अब देश की दो बड़ी कंपनीज के बारे में बताते हैं आपको। उनका जो विस्तार हो रहा है, पहला मारुति जो कि 11,000 करोड़ रुपए के विस्तार के साथ सोनीपत में एक नया प्लांट लगा रही है, जहां पे करीब 2.5 लाख गाड़ियां बनाई जाएंगी। साथ ही टाटा मोटर्स की भी कुछ ऐसी योजना है। टाटा मोटर्स करीब 32,000 करोड़ रुपए का कुल मिला के निवेश करना चाहती है। भारत में ये निवेश की जो संख्या होगी वो 6,000 करोड़ रुपए के आसपास है। टाटा मोटर्स ई व्हीकल्स के अंदर दिग्गज प्लेयर है और टाटा मोटर्स का फोकस ई व्हीकल्स पर ही ज़्यादा है। इसके अलावा अपने कॉमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स में भी विस्तार की योजना पर ज़्यादा जोर दे रही है। और अब बात अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक अच्छी खबर की करते हैं। पिछले 2 साल में आरबीआई के गोल्ड रिजर्व में करीब 100 टन का इजाफा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2022 के अंत तक रिजर्व बैंक के पास 760 टन सोना था, जिसमें 11 टन सोना तो डिपॉजिट के तौर पर था, जबकि 450 टन सोना विदेश में बैंक ऑफ इंग्लैंड और 20 के पास सुरक्षित है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से रिजर्व बैंक के गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। पिछले 2 साल में ये 100 टन से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। कुल फॉरेन रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी सितंबर 2021 में करीब 6.25% थी, जो अब बढ़कर 7% हो गई। और अब बात कर लेते हैं डीमार्ट के नतीजों की। कंपनी के मार्च तिमाही के नतीजे आ गए हैं, जिसमें कंपनी का मुनाफा 426 करोड़ है। ये मुनाफा 3% बढ़ा है और साथ ही कंपनी की जो आय है उसमें जोरदार उछाल देखने को मिला, जो कि 19% बढ़कर 8,786 करोड़ हो गई है। कंपनी के मार्जिन्स भी पहले के मुकाबले थोड़े सुधरे हैं, यानी कि इन्फ्लेशन के प्रेशर को उन्होंने काफ़ी अच्छे तरह से झेला। ये मार्जिन्स हैं 8.4% और कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वो 700 करोड़ को पार होने के बाद अब 740 करोड़ का दिख रहा है, जो पिछले बार ही सिर्फ 612 करोड़ था, यानी कि जो ग्रोथ हुई है वो करीब 21% के आसपास की है। कंपनी के मैनेजमेंट ने भी बयान दिया है। कंपनी कह रही है कि 2022 के जो मार्च महीना और रिकवरी का महीना है, उनका ये भी कहना है कि आगे चल के रिकवरी मजबूत रह सकती है, तिमाही आधार पर और साथ ही सालाना आधार पर भी। कंपनी ने एक चीज़ और नोटिस की है कि एफएमसीजी कारोबार में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है और ग्राहकों की भागीदारी भी एफएमसीजी में अच्छी देखने को मिली है। इसके अलावा उनका कहना है कि जो नॉन एफएमसीजी सेगमेंट है वहाँ पर थोड़ी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी कमज़ोर है, बट फिर भी वो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर रिकवरी अच्छी देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और अब एक टेलीकॉम कंपनी की बात बोलते हैं। यूएई की कंपनी एटिसलाट ने वोडाफोन ग्रुप पीएलसी में करीब 10% हिस्सेदारी खरीद ली है। एटिसलाट और वोडाफोन ग्रुप पीएलसी के बीच में डील $4.4 बिलियन में हुई है। एटिसलाट ने एक बयान जारी करके कहा है कि वोडाफोन जैसी दुनिया की दिग्गज कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने से उसको कनेक्टिविटी साथ ही डिजिटल सर्विसेज को एक्सपोजर बढ़ाने में काफ़ी सुधार मिलेगा। और बात टेस्ला गाड़ियों की। टेस्ला ने भारत में अपनी एंट्री की प्लानिंग को फिलहाल टाल दिया है। लो इंपोर्ट ड्यूटी पर बातचीत नहीं बन पाने के कारण ये फैसला टेस्ला ने लिया। कंपनी भारत में इंपोर्ट ड्यूटी में छूट पाने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उत्पादन पर जोर तो रहेगा। साथ ही मंत्री जी ने यह भी कहा कि इलान मस्क अगर चाहें तो भारत में गाड़ियां ई व्हीकल्स की गाड़ियां का प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन चीन में उत्पादन कर भारत में गाड़ी बेचना सही नहीं होगा। ऐसे में टेस्ला की तरफ से प्लान में बदलाव हुआ और वो उन्होंने किसी तरह के कोई शोरूम की तलाश नहीं शुरू की है। कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए पार्टी ने उदयपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर चला रखा है। आज दूसरा दिन था। उसमें ये प्रस्ताव रखा गया कि चुनावों के दौरान पार्टी के बड़े नेता धार्मिक स्थलों में ना जाएं, इससे वोटर्स को गलत मैसेज जाता है।
साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि कांग्रेस को बीजेपी के सामने एक मजबूत धर्मनिरपेक्ष स्टैंड लेना चाहिए। इस बीच कांग्रेस को आज एक बड़ा झटका भी लगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। I think economic policies are the lifeline of a country. It touches everybody. Polarization is only for a political purpose. It's not either you debate this or debate that. We will oppose polarization, but we will plead for sensible, sane economic policy. और अब एक ऐसी प्रतियोगिता की बात आपके सामने रखते हैं जो कि अपने आप में काफ़ी अद्भुत है, काफ़ी बेहतर है। अगर आप शेयर बाज़ार को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं और अपना कौशल दिखाना चाहते हैं तो ET Now स्वदेश और BSE का इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड आपके लिए एक खास प्रतियोगिता का इंतजाम कर रहा है जिसका नाम है सेंसेक्स का सुपरस्टार। आप भी सुपरस्टार बन सकते हैं। इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करके तरीका बेहद आसान है। या तो आप हमको SMS कर दीजिए SKS लिखकर 56161 पर,